Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In last video, in exercise 52, we have already done question up to 4. Now in this video lecture, we will complete question number 5, 6 and 7. In this way, we will complete exercise 52 and also chapter 11. So let's begin with question number 5. Find the quotient correct to two decimal places in each of the following division sums. तो पहले तो डिवाइड करना है और जो भी क्वोशंट आता है उसके बाद उसे टू डेसिमल प्लेस तक के लिए करेक्ट करना है. यानी इसमें दो प्रोसीजर है, पहले तो डिवाइड भी करेंगे फिर क्वोशंट फाइंड करेंगे. अब जब क्वोशंट मिल जाएगा तो उसको फिर टू डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करेंगे. तो आइए फिफ्थ का ये देखते हैं. 2.3 डिवाइडेड बाई 9. 2.3 डिवाइडेड बाई 9. तो चलिए पहले 9 से डिवाइड करते हैं 2.3 को. यहां देखिए होल पार्ट में 2 है और 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 इज लेस देन 9. तो 9 का मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे कि 2 से कम है. तो 9 0 जा 0 0 is less than 2. When 0 is subtracted from 2 we get here 2. Now the next step, the next digit comes after the decimal point, so we will place here a decimal point and the 3 will come down. So it become 23. 9 1 ja 9, 9 2 ja 18, 9 3 ja 27. 27 is more than 23, so we will multiply 9 2 ja 18. When we subtract 18 from 23 we get here 5. Again here 9. After subtraction we get here 5. It is the rule of division that after subtraction we can carry down one digit from dividend, but here no digit, but the decimal place has been started, so a 0 can be placed here. 9 5 ja 45. Here again comes 5, again 0 down. 9 5 ja 45, again 5, and this will carry on 0.2555 so on. So we have to correct two decimal place, so we will take here only 3 digit 3 decimal places. 0.255. Quotient is 0.255. We have to correct it for two decimal place, first decimal place, second decimal place. तो सेकंड डेसिमल प्लेस के लिए अगर करना है तो हमें उसके ठीक राइट में जो डेसिमल प्लेस यानी कि थर्ड डेसिमल प्लेस की डिजिट देखनी होगी. हियर इट इज 5. सो वी इंक्रीज द सेकंड डेसिमल डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस each digit after this second decimal place digit 0. So it becomes 0.26. 0.260. Quotient 0.255 आ चुका है. The digit at third decimal place is 5. So increase the digit at second decimal place. Second decimal place पे यहाँ पर 5 है तो इसको increase करेंगे. We will increase by 1. So it become 0.26. एंड रिप्लेस ईच डिजिट आफ्टर इट बाय 0. और सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद जो भी डिजिट है उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे, यानी 0.26 0 हो जाएगा. ये क्या है क्वोशंट. अब करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस करना, यानी डेसिमल प्लेस कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे. और हमें मालूम है कि राइट में इफ इन डेसिमल प्लेस द मोस्ट राइट प्लेस देयर इज 0, सो डू नॉट नीड टू राइट 0. वी कैन राइट इट 0.26. सो 2.3 divided by 9, its quotient is this, and it is correct to two decimal places. We write here 0.26. So answer is 0.26. Now next, 21.83 divided by 16. We have to correct the quotient to two decimal place. So first find the quotient. Here whole part is 21. Here 16. Let's divide 16. So 21, 16 1 ja 61, 16 2 ja 32. So we multiplied
1. 16 1 जा 16. When you subtract, we get here 5. Next digit comes after decimal point, so we will place here decimal point and carry down the 8. 16 4 जा 64. So 16 3 जा 48. We multiplied 16 by 3, so we get here 48. And when 48 is subtracted from 58, we get here 10. Now the next digit from dividend comes down. It becomes 103. Now multiplied 6 with a number which is the product is less than 103. 103 minus 96, it becomes 6. Since the decimal place has been begun in quotient, so we can easily write it a 0. We have authority to write here 0 because it comes decimal places. So 16 4 ja 64. It becomes 6. 6 is remainder. But here we have already got 3 decimal place quotient, and we have to correct it to 2 decimal place. We can easily correct it because we have got 3 decimal place quotient. So quotient is 1.364. So we have to correct it 2 decimal place. So we will check the third decimal place digit, which is 4 and which is less than 5. So digits after second decimal places will be replaced by 0, and the other number and other digits will be same. So let's write these things. 1.364 हमें सेकंड 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना है, तो थर्ड प्लेस की डिजिट देखते हैं. वी फाइंड हियर दिस इज 4 विच इज लेस देन 5. So replace each digit after second decimal place. That means after 6, all the digits will be replaced by 0. And we write here, because the quotient correct to this 2 decimal place, we have to write here. So 1.36, and the digits after second decimal place will be replaced by 0. So 1.360 equal to 1.36. We have to correct it to 2 decimal place. 1.36. This is the answer. Let's see next. 3.7 divided by 17. We have to find the quotient and then correct it to 2 decimal places. So let's divide. 17. If we divide 3 by 17, 3 is less than 17. So 17 0 ja 0. And when 0 subtracted from 3, it gets 3. Now the next digit comes after decimal point. So place here decimal point and comes down 7. 17 2 ja 34. It becomes 3. After decimal point, we can easily take 1 0 towards our number. So here we can place it 0. 17 1 ja 17. It comes 13. And in decimal, so we have already placed decimal point, so we can easily take 0. Now 17 7 ja 190. When we subtract it, we get here 11. 17 7 ja. So we have already got the quotient up to 3 decimal place. Now we can easily correct it to 2 decimal place. So we write here quotient equal to 0.217. We have to correct it to 2 decimal place. So we will check here third decimal place digit. It is 7 greater than 5. So we increase the second decimal place digit by 1. So it becomes 0.22. And since we have to correct it to 2 decimal place, so digit after the second decimal place will be replaced by 0. So our final answer will be 0.22. Let's write it. The digit at the third decimal place is 7, which is greater than 5. So increase the digit at the second decimal place by 1. Replace each digit after the decimal place by 0. तो 0.217 में थर्ड डेसिमल प्लेस की डिजिट 7 है जो ग्रेटर देन 5 है,
तो सेकंड डेसिमल प्लेस के डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। तो 1 में जब 1 को इंक्रीज करेंगे 1 से तो ये बन जाएगा 2, और उसके बाद के सारे डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है 0.22। अब हमारा जो क्वोशंट है वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस का बन चुका है। इस तरह से सी कंप्लीट होता है। ये देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ 8.283 को डिवाइड करना है 22 से, और जो भी क्वोशंट आएगा उसे 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना है। तो आइए पहले फाइंड करते हैं क्वोशंट क्या होगा। तो 22 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे होल पार्ट 8 है, तो 8 तो स्मॉलर देन 22 है, तो एक 0 प्लेस करेंगे, और उसके बाद क्या डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो ये 2, अब ये दूसरी तरह से कर लीजिए, 22 0 जा 0, 8 में 0 गया 8, डेसिमल पॉइंट लगाए क्योंकि नेक्स्ट डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो 2 यहां पर आया। अब 22 3 जा 66, 82 में 66 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आएगा 16। अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी, यानी कि 8 नीचे आएगा। अब 22 में उस नंबर का मल्टीप्लाई करिए कि 168 से ज्यादा ना हो बट इसके नजदीक हो, क्लोजर हो। तो 22 यहां पर हम करेंगे 22 7 जा 154। अब 168 में 154 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहां पर, तो हमें मिलता है 14। अब ऊपर से यहां 3 नीचे आएगा, 3 कम्स डाउन, एंड 22 6 जा 132 आएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां मिलेगा 1 और यहां पे मिलेगा 1। अब देखिए रिमाइंडर हो गया, आगे नहीं जाते हैं क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना है। तो डेसिमल प्लेस अगर 3 डेसिमल प्लेस का नंबर हमें मिल जाता है तो उसके बाद आगे नहीं जाते। अगर 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना है तो वो नंबर कम से कम 3 डेसिमल प्लेस का होना चाहिए। अब 0.376 को हम 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करेंगे। तो पहले लिख देते हैं क्वोशंट हमारा क्या हुआ। क्वोशंट आया 0.376। अब क्वोशंट को क्या करना है, देखिए पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे भी आंसर लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आपको 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना, तो देखिए क्वोशंट को तो फर्स्ट सेकंड डेसिमल प्लेस पे पहुंचते हैं, ठीक उसके राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, यानी थर्ड डेसिमल प्लेस की डिजिट को देखते हैं जो कि 6 है। यहां पर ये 6 है तो 6 5 से ग्रेटर है, इसलिए सेकंड डेसिमल प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 0.3, और इस 7 में 1 ऐड होगा तो ये 8 बन जाएगा। अब देखिए 6 में, और उसके बाद 6 का क्या होगा, वो 0 पे से रिप्लेस हो जाएगा। सेकंड डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है तो उसके बाद जितने भी डेसिमल प्लेस है सबकी डिजिट को आपको 0 से रिप्लेस कर देना है। और 0.380 को आप क्या लिखोगे, 2 डेसिमल प्लेस का नंबर 0.38, यानी 0.376 का आपने करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस बना लिया है 0.38। तो 8.283 डिवाइडेड बाई 22 का क्वोशंट हुआ 0.38, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ 16.46 को 15 से डिवाइड करना है और जो क्वोशंट आता है उसे 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना है। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइजन यहाँ 15 है, डिविजन 16.46, 15 1 जा 15, 16 में 15 गया 1 आया। अब नेक्स्ट डिजिट आएगी ऊपर से नीचे, मगर वो तो डेसिमल पॉइंट के बाद है तो आप डेसिमल पॉइंट लगाइए और 4 को लेके आइए। अब 15 इज ग्रेटर देन 14, 14 अभी भी 15 से कम है तो 6 लेके आते हैं आप, उसके लिए आप 0 प्लेस करते हैं और 6 नीचे लेके आते हैं। 15 9 जा 135। अब यहां माइनस करेंगे तो यहां पर 1 और 1 11 आ गया। अब डेसिमल पॉइंट हम लगा चुके हैं इसलिए एक डिजिट आती रहेगी। आप यहां से क्या है, अगर कोई डिजिट नहीं रहती तो आप एक 0 ले सकते हैं, इसकी अथॉरिटी आपको मिल जाती है और आप यहां पे 0 लिख देते हैं। 15 से बन जा 105, यहां पर मिलेगा 5। आप इसको स्टॉप कर दीजिए रिमाइंडर, क्योंकि हमें यहां पर 3 डेसिमल प्लेस मिल चुके हैं, हमें 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना था। तो लिख लेते हैं क्वोशंट क्या है। यहां पर क्वोशंट 1.097 है,
तो देखिए क्वेश्चन करेक्ट टू डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा। 2 डेसिमल के लिए हम करेक्ट करना है तो क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, उसके राइट की डिजिट यानी थर्ड डेसिमल प्लेस की डिजिट जो कि यहाँ 7 है और 7 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए सेकंड डेसिमल प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा और हम लिखेंगे यहाँ पर 1.09 में जब 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 और सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो 0 से रिप्लेस हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 2 डेसिमल के लिए बनाना है इसको तो 1.10 क्वेश्चन हमारा 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट हो गया है, तो इसका आंसर ये होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का लास्ट है 101.37 डिवाइडेड बाई 20। इसका क्वेश्चन फाइंड करना है और उसे 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, क्वेश्चन के लिए डिवाइड करना होगा। 25 जा 100, 100 में 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। अब नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी 3, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के बाद है इसलिए डेसिमल यहाँ पे प्लेस करते हैं पॉइंट को और 3 लेके आते हैं, लेकिन 13 तो लेस देन 20 है तो आप एक 0 लगाइए और एक और डिजिट लेके आइए। अब 28 जा क्या होता है 26 जा 120, क्योंकि 27 जा करेंगे तो 140 हो जाएगा जो कि मोर देन 137 होगा। अब देखिए यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और ये 17 आ गया। अब डेसिमल प्लेस के बाद रिजल्ट आना शुरू हो गया है, तो अब यहाँ पे अगर डेसिमल प्लेस के बाद कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 ला सकते हैं। तो 0 एक बार डेसिमल लगाने के बाद आपको 0 लाने की अथॉरिटी मिल जाती है, आप 0 लाते हैं और 28 जा 160 आ जाएगा और यहाँ पर 10 रिमाइंडर बचेगा। आगे आप नहीं इंक्रीज करेंगे क्योंकि आपको सेकंड डेसिमल प्लेस तक ही करेक्ट करना है, तो आपको थर्ड डेसिमल प्लेस यहाँ पर मिल चुका है। क्वेश्चन 5.068 देयरफॉर क्वेश्चन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस क्या होगा, हमें इसे 2 डेसिमल प्लेस का बनाना है। तो देखिए 5.0 सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद यानी तक ही रखना है हमको, सेकंड डेसिमल प्लेस तक रखना है। तो हम देखेंगे उसके राइट का यानी थर्ड डेसिमल प्लेस की डिजिट 8 है यानी ग्रेटर देन 5 है, तो सेकंड डेसिमल प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 5.07 और उसके बाद यानी सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद जो भी डिजिट्स हैं 0 से रिप्लेस हो जाएंगी। अब 5.070 क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस का ही रखना है तो 5.070 रखें या 5.071। डेसिमल लास्ट में डेसिमल प्लेस में 0 रखने का कोई मीनिंग होता नहीं है और हमें तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा 5.07। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जो पढ़ाया गया रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।